was just thinking of a few things. Last time we heard about the Apostle Paul was discussing about righteousness, self-control, and judgment to come. और पिछले संदेश में जैसे हमने सुना कि प्रेरित पौलुस बात कर रहे थे न्याय के बारे में, अपने ऊपर नियंत्रण के बारे में। उस वचन को हम फिर से देखेंगे। Verse chapter 24 of Acts, verse 25. Can we read it? And as we were प्रेरितों discussing, chapter Acts, प्रेरितों का काम, यस ब्रदर, 24, प्रेरितों 25. के काम 24 उसका 35 वचन 25 वचन। And as he was discussing righteousness, self-control, and judgment to come, Felix became frightened and said to him, "Go away for the present, for an appointed time I will summon you." जब वह धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। And verse 26 says, "At the same time, he was hoping that money would be given to him by Paul. Therefore, he also used to send for him quite often and converse with him." और 26वां वचन, उसे पौलुस से कुछ धन मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता था। And after 2 years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus, and wishing to do the Jews a favor, Felix left Paul imprisoned. और 27वां वचन, परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। See, the Apostle Paul was, he was talking always when he used to, suppose you were to go and meet the Apostle Paul, he would be discussing about these things. How to do the things that are right in the sight of God, how to have self-control, and how the Lord is coming soon, judgment to come. और अगर आप उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर आप पौलुस प्रेरित से बात करेंगे तो वो क्या बात करेंगे, वो यही बात करेंगे कि प्रभु की नजरों के सामने क्या सही है आप वही करें। वो धार्मिकता के विषय में बात करेंगे, वो संयम के विषय में बात करेंगे, वो आने वाले न्याय के विषय में बात करेंगे। This is the same thing Jesus also used to discuss and talk about. और यही चीज यीशु मसीह भी जब आपस में जब वो अपने चेलों से लोगों से यही बातें किया करते थे। And this is what you and I also should always discuss about. और यही मुझे और आपको भी हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो इस विषय पे बात करें। We can talk about so many topics, but we should ultimately aim at how to live right in the sight of God. और हम भले ही बहुत सारे विषयों के बारे में बात कर सकते हैं, पर हमारा जो आखिरी उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि हम कैसे प्रभु की नजरों के सामने जो सही है वही काम करें। And do right means always do the good. और सही करने का अर्थ ये है कि जो कुछ अच्छा है वो करें। Be good as God is good. अच्छे बने क्योंकि परमेश्वर भला है। God is good all the time. और जो परमेश्वर है वो हमेशा भला ही करता है। And we are his children, so we also should be good all the time. और जब हम भी परमेश्वर की संतान है तो हमें भी हमेशा अच्छा ही रहना है। And many times we see we are not good and we are not doing the right thing, but God is changing us and we have to change. और बहुत बार हम देखते हैं कि हम कई जगह बहुत सारी जगहों पर सही काम नहीं करते हैं, तो हमें प्रभु हमें बदल रहा है और हमें उस बदलाव में हमें अपने आप को बदलना है। And this is the new covenant, and God has given us the Holy Spirit, the power of God Himself in our lives, and it is definitely God will give us the victory, and we can change. और ये नई वाचा है, इसमें परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा हमें बदलने के लिए। And we can have self-control by the power of the Holy Spirit. और हमारे अंदर संयम आएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। Or self-control over our tongue, over our appetite, over our sleep, and over our sexual habits. और संयम हमारे सोने पे, संयम हमारे खाने पे, संयम लैंगिक बातों पर, और जितनी भी हमारे जुबान पर हमारा जो संयम है वो भी आएगा। And can self-control on our thought life. और हमारे विचारों पर भी संयम होगा। And self-control how we spend money. हम किस तरीके से पैसा खर्च करते हैं उस पर संयम। And then we always think about one day we have to stand before the Lord Jesus. और हम हमेशा यही सोचेंगे कि हमें एक दिन प्रभु यीशु के सामने, न्याय आसन के सामने खड़े होना है। We have the people in this world are just eating and drinking and enjoying their life, traveling here and there. और संसार के जो लोग हैं वो खा पी रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और सिर्फ वो लोग इन्हीं कामों में व्यस्त हैं। They just want pleasure and entertainment. उन्हें सिर्फ आनंद और मनोरंजन चाहिए।
But the Lord says every day we have to give an account of our life. पर ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर दिन का जो हिसाब है प्रभु को देना पड़ेगा। And Felix, who was the governor, when he heard these things, he became very frightened. और जब जो फेलिक्स था जो यहूदियों के इसमें राजा था, तो उसने जब ये बातें सुनी तो बहुत घबरा गया। He didn't want to hear all these things because he was living a very unrighteous life. और वो उसे ये सब सुनना पसंद नहीं था क्योंकि वो एक बहुत ही अधार्मिक जीवन जी रहा था। And he didn't want to hear all these negative things. और उसे ये सब जो गलत चीजें हैं, जो नकारात्मक बातें, ये सुनना पसंद नहीं था। He was a big lover of money. वो पैसों का बहुत बड़ा प्रेमी था। Even though he was a governor, he was getting a very good salary. Plus, he wanted more and more money. और वो एक गवर्नर था, उसे बहुत अच्छा वेतन भी मिलता था, उसके बाद भी वो पैसों की लालच करता था। And he was hoping that Paul would give him money. और उसको ये आशा थी कि पौलुस से भी उसको वो पैसा मिलेगा। How did he know that Paul has a lot of money? उसे कैसे पता कि पौलुस के पास बहुत सारा पैसा है? Paul didn't take money from the believers like today's preachers were taking and giving and keeping for himself. और पौलुस जो था वो विश्वासियों से पैसा नहीं लेता था, जैसे आजकल के जो प्रचारक है वो विश्वासियों से पैसा लेते हैं। Most of the preachers and teachers, they just collect money from all sort of people and they build houses for themselves and a lot of aeroplanes and travel and live in luxury. और आजकल बहुत सारे जो प्रचारक हैं वो विश्वासियों से बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, फिर खुद ही के लिए घर बनाते हैं, एरोप्लेन्स खरीदते हैं, बहुत सारी जो आरामदायक चीजें वो खरीदने लगते हैं। From where did Paul get that? He knows that Paul has got so much money. और पर फेलिक्स को कैसे पता कि पौलुस के पास बहुत सारा पैसा है? Paul came from a very, very rich family. और जो पौलुस था वो बहुत ही एक अच्छे अमीर घराने से आता था। He had forsaken everything to preach the gospel. और पर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए उसने सारा सब कुछ छोड़ दिया था। We know he had a sister in Jerusalem. और हमें पता है कि उसकी एक बहन थी यरूशलेम के अंदर। When he left his Jewish religion, I think they all must have got, his father and mother must have got angry with him. और मुझे ऐसा लगता है कि जब पौलुस ने यहूदियों का जो धर्म है वो छोड़ दिया था तो उसके माता पिता बहुत गुस्सा हो गए थे उससे। But then they must have died and then all the property came to him. और जब उसके माता पिता मर गए होंगे तो जो सारा जो जमीन है, जो जितना पैसा, वो सब कुछ पौलुस के पास आ गया होगा। And he inherited a lot of wealth. और उसको बहुत सारा जो खानदान की तरफ से पैसा और वो जमीन मिली होगी। And Felix knew that. और फेलिक्स को ये सब बातें पता थी। And if Paul would have given him some money, the apostle Paul could have, he would have set the apostle Paul free. और अगर पौलुस फेलिक्स को पैसे दे देता तो हो सकता है कि फेलिक्स उसे छोड़ देता। And the apostle Paul was accused all wrongly. और जो प्रेत पौलुस है उसके ऊपर सारे फिर दोष लगने लग जाते। The Jews had put a wrong assumption and he had to go through all this trouble and almost lose his life because of all these wrong accusations. और यहूदी उस पर गलत आरोप लगाने लगते कि वो इतने सारे परेशानियों से गया और आखिरी करके वो छूट गया। Because of that, Felix used to talk to him very often. और इसीलिए फेलिक्स उसे बार बार बुलाकर उससे बात करता था। But then Paul was never going to give any money and bribe. पर पौलुस ने कभी भी फेलिक्स को रिश्वत नहीं दी, उसे कभी भी कुछ भी पैसा नहीं दिया। And so Felix delayed the decision and ultimately for 2 years he delayed his release. और इसी कारण से फेलिक्स ने उससे छोड़ने का मना कर दिया और 2 सालों तक वो न्याय को टालता रहा और आखिरकार फिर फेलिक्स ने उस पद से वो हट गया वहाँ। And for 2 years the apostle Paul had to sit in the prison and could not go to any church or anywhere, just there in the prison. और फिर 2 साल तक पौलुस जेल के अंदर ही रहा, वो कहीं भी किसी भी कलीसिया में नहीं जा पाया, कहीं पे भी उसने प्रचार नहीं करा। But the apostle Paul was happy in the Lord because God was with him. और पर प्रेरित पौलुस प्रभु में आनंदित थे, वो उस जेल के अंदर भी बहुत आनंदित थे। Many of us we are sometimes feel a lot of discomfort because we cannot travel here and there or go for meetings. But if the Lord is there with you, you can be very happy.
और आज कई बार हमें भी ऐसा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम बहुत सारी जो सभाएं हैं उसमें नहीं जा पा रहे, या फिर हम इधर उधर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर प्रभु हमारे साथ है, आपके साथ है, तो हम जहाँ कहीं भी हैं वहीं पर हम आनंदित आनंदित रहेंगे। The Apostle Paul was filled with the Holy Spirit every day, and because of that, he could rejoice in the Lord and praise the Lord and worship Him. और प्रेरित पौलुस हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहते थे, हर दिन वो पवित्र आत्मा से भरते थे, इसलिए वो रोज प्रभु का धन्यवाद करते थे, स्तुति आराधना करते थे। And he was praying for all the believers everywhere. और वो हमेशा हर एक जितने भी विश्वासी थे हर जगह पर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। And his time was very well utilized. और वो अपने समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग करते थे। See, he was always thinking about these things, about how to do right and how to have self-control and how to stand before the judgments of Jesus Christ. और वो हमेशा प्रेरित पौलुस इसी बारे में सोचते थे कि कैसे प्रभु की नजरों के सामने मैं अच्छा कर सकूं, कैसे मैं अपने ऊपर संयम ला सकूं, ताकि मैं प्रभु के सामने एक अच्छे से खड़ा रह सकूं। Because he was thinking all these things, he was talking about these things. और क्योंकि वो इन बातों के बारे में सोचते थे, इसीलिए वो बातों के बारे में बातें भी करते थे। See, whatever we think about, that we talk. और देखिए, जो हम सोचते हैं हम उसी के बारे में बात करेंगे। We see this verse in Proverbs chapter 23, verse 7. और हम नीति वचन उसका 23 उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। It says, for as he thinks within himself, so he is. क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति है जो ब्रदर 23 वर्स 7। 7 now, only the first part of it. क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति है जो भोजन के कीमत की गणना करता है, वह तुझसे कहता तो है खा और पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। Actually, in the English verse, it says, as a person thinks, see, when a person goes into somebody's house and that person is a very stingy type of person, he'll tell you to eat, but his heart is not with you. और ब्रदर प्लीज रिपीट। No, when you go to a person who is a very stingy type of person, very conjuice, and he's telling you to eat, but his heart is not, he's a conjuice, but his mouth is saying just keep on eating. और मान लीजिए कि आप एक बहुत कंजूस कोई व्यक्ति है, उसके घर पे खाना खाने गए हैं, तो वो आपसे बोलेगा तो सही कि आप खाना खा लीजिए, पर वो उसके मन से वो सिर्फ मुंह से बोल रहा है, उसके मन में इच्छा नहीं है कि आप खाना खाएं। So we must sense what his attitude is, what his spirit is. So it says, as a person thinks inside his life, so is he. और इसलिए हमें आत्मा को जांचना है कि हमारे मन में क्या है, हमारा व्यवहार किस प्रकार है, हम क्या सोचते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बोलेंगे भी। See, if a person thinks about money all the time, he will talk about money. और मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है वो हमेशा पैसों के बारे में सोचता है, तो वो उसी के बारे में बात करेगा। If he he's thinking about going here and there, roaming here and there, he will talk about that. और अगर कोई व्यक्ति इधर उधर घूमने जाने के बारे में सोचता रहता है, तो वो उसी के बारे में बात करेगा। So, and if we want to buy a lot of clothes and go run after all these good food, then we will think about and talk about good food. और अगर कोई व्यक्ति है जो इधर कपड़े लेने के लिए जा रहा है, या फिर बहुत सारे इधर उधर खाना खाने के, तो वो उन्हीं बातों के बारे में सोचता भी है। Yes, Jesus said in Matthew chapter 12. और मत्ती किताब उसका 12वां अध्याय निकालेंगे। Verse 34. 34 वचन। Jesus told the Pharisees, you brood of vipers, how can you, being evil, speak what is good? For the mouth speaks out that which fills the heart. हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। Verse 35 says, for the good man out of his good treasure brings forth what is good. The evil man out of his evil treasure brings forth what is evil. और 35 वचन, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है।
So all the things that we talk every day is coming from our heart. और इसलिए जो हम रोज दिन भर बात करते हैं हर रोज, वो हमारे मन में भी भरा हुआ है। If we have high thoughts and proud thoughts in our heart, we will all speak very harshly and we will speak very rudely. और अगर हमारे मन में बहुत ऊंचे विचार है, हम खुद के बातों पर घमंड करते हैं, तो हम बहुत ही कठोरता से बात करेंगे, हम बहुत ही गलत तरीके से बात करेंगे। If we are humble in heart, then we will talk gently and softly. और अगर हम मन में नम्र और दीन हैं, तो हम धैर्य के साथ और नम्रता के साथ बात करेंगे। If we love money in our heart, we will start talk a lot about money and how to make more and more money. और अगर हमारे मन में पैसों का प्रेम है, तो हम हर हर समय उसी के बारे में बात करेंगे। So whatever is our heart, we will speak. और जो कुछ हमारे मन में है, हृदय में है, वही हम मुंह से बोलते हैं। The Apostle Paul's heart was good. He said, I want to live in a way that is right in the sight of God and do good in the sight of God. और प्रेरित पौलुस का जो हृदय था, वो बहुत प्रभु की नजरों के सामने बहुत साफ था, इसलिए वो हमेशा यही सोचते थे कि कैसे वो प्रभु के सामने एक सच्चे विवेक के साथ और अच्छी सच्चाई से प्रभु के साथ में चल सके। And how to do good to everybody, और कैसे वो हर एक के साथ भलाई कर सके, even to his enemies and all the people who do evil to him. और उन लोगों के साथ भी जो उन्हें सताते थे, जो उनके साथ बुरा करते थे। Because the Holy Spirit was teaching him every day. क्योंकि पवित्र आत्मा रोज उन्हें सिखा रहा था। And how to have self-control in what I see and what I eat and where I go. Self-control in so many things. और कैसे वो संयम को सीख रहे थे, अपने खाने के ऊपर, सोने के ऊपर, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, हर चीज के ऊपर संयम था। He was asking God, please help me to have self-control over where I go, with whom I'm meeting. The Holy Spirit has to take control and not myself. और वो पवित्र आत्मा से बोलते थे कि पवित्र आत्मा मुझे बताइए, मुझे संयम दीजिए कि मैं कहाँ जाऊं, किन से बातें करूं, किन से मिलूं, हर चीज के लिए वो पवित्र आत्मा पर निर्भर थे। And every day he had the fear of God in his own life, the judgment seat of God. They said, Lord, I don't want to do anything. One day I have to stand before you, I have to give account of you on all the things that I do. Please help keep me in the fear of God. और हर दिन उनके हृदय में परमेश्वर का भय था, वो प्रभु का भय मानते थे। हर समय वो यही सोचते थे कि कैसे वो प्रभु के न्याय सन के सामने उन्हें कुछ भी गलत नहीं करना, एक दिन उन्हें खड़ा होना, इसलिए वो प्रभु का भय मानते थे। Because he thought about these things, he talked about these things even to Felix, who was his judge. और वो इन चीजों के बारे में सोचते थे, इसीलिए वो ये बातें करते थे। फेलिक्स के सामने भी, जो उनका न्याय करने वाला था, उसके सामने उन्होंने ऐसी ही बातें करी। So, dear brothers and sisters, we also must talk about these topics more and more, not about all the gossip that goes on and the politics and all or the loose talk about this one and that one. और इसलिए भाइयों बहनों, जब हम कभी भी किसी बारे मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम भी अधिकतर इन्हीं विषयों के ऊपर बात करें। कोई भी राजनीति की बात या दूसरी बात या फिर किसी की बुराई करना है, ऐसी कोई भी बात ना करके इन विषयों के बारे में बात करें। There are many believers who don't like to discuss these topics at all. They get bored. और बहुत सारे जो विश्वासी हैं, वो इन विषयों के ऊपर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्हें बहुत बोरिंग लगने लगता है। They like to talk about food, about clothes, about traveling here and there. और उन्हें बात करना पसंद है खाने के बारे में, इधर उधर घूमने जाने के बारे में, कपड़ों के बारे में, इन चीजों के बारे में। Most of them are backslidden worldly believers. और ये उनमें से जो अधिकतर हैं, ये अविश्वास से पीछे हट गए ऐसे विश्वासी हैं ये। Most of the time they sit and gossip and backbite. और अधिकतर समय वो जब मिलते हैं, तो वो किसी न किसी की बुराई करते हैं और पीठ पीछे बातें करते हैं। And Felix's wife was a Israelite. और जो फेलिक्स की जो पत्नी थी, वो एक यहूदीन थी। But he was a big lover of money. पर फेलिक्स बहुत बड़ा पैसों का प्रेमी था। Because of that, he could not bear to listen to this conversation. और इसलिए वो ये जब पौलुस के साथ में बात होती थी, तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। So that is why he kept on rejecting the word of God. और इसलिए वो परमेश्वर का जो वचन है, उसको लगातार नकारता रहा। And because of that, he never got any salvation. He went away without giving the justice to the Apostle Paul. और इसलिए उसका उद्धार भी नहीं हो सका, और उसने प्रेरित पौलुस का न्याय भी नहीं किया, उसे बिना न्याय दी उसने अपना पद छोड़ दिया।
So, my dear brothers and sisters, let us think more about the Word of God and let the Word of God be in our thoughts more so that we can talk about it. और इसलिए भाइयों बहनों हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचनों के बारे में बात करें। प्रभु के वचन अगर हमारे हृदय में होंगे तो हम उन्हीं चीजों के बारे में विषय के बारे में बातें करेंगे। And then we will behave the right way. और फिर हम सही तरीके से हमारा व्यवहार होगा। And then we will remain in the fear of God every day. और फिर हम हर दिन प्रभु के भय के अंदर चल सकेंगे। And we will be able to control all our desires. और फिर हम अपनी जितनी भी अभिलाषाएं उनके ऊपर हमारा संयम होगा। Because by the power of God, the Holy Spirit will help us. और पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। We will cry to God, we pray to God, we thank God. और हम प्रभु को पुकार सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। Otherwise, all our minds will be on worldly things and we will want worldly things like the people of this world. और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा फिर संसार की बातें ही सोचते रहेंगे, वही बातें हमारे मन के अंदर आती रहेगी। And then we will not be ready when Jesus calls us. और फिर कभी जब भी प्रभु हमें बुलाएंगे तब हम तैयार नहीं रहेंगे। We will be ashamed. और हम बहुत शर्मिंदा होंगे उस समय। Because our mind was set on earthly things. क्योंकि हमारा जो मन था वो संसार की बातों पर लगा हुआ था। We must keep our love for God most and first in the life and never displease the Lord and the Holy Spirit. और इसलिए हमें अपना जो प्रेम है सबसे पहला प्रभु के लिए होना चाहिए। परमेश्वर के लिए हमारा जो प्रेम है सर्वोत्तम होना चाहिए और प्रभु के लिए हम जी सकें। We will do all our normal activities, but always the Lord should be always top in our mind and to do His will. और भले ही हम हमारे रोजमर्रा के कामों को करेंगे, जो हम काम करते हैं, फिर भी हमारा जो मन है वो प्रभु की बातों पर, प्रभु के वचनों पर होगा। So, dear brothers and sisters, let us live this Christian life like this every day, and let it become better and better with us. और इसलिए भाइयों बहनों आइए हम ऐसे मसीह जीवन को जिए जो प्रभु चाहते हैं। This is the happiest life to live. और ये सबसे अच्छा जीवन है जो हम जी सकते हैं। We live as kings and priests to God. और हम प्रभु के लिए राजाओं की तरह प्रभु के लिए हम जी सकते हैं। And God's favor will be upon each one of us. और प्रभु का जो अनुग्रह होगा वो हम सभी के ऊपर होगा। So this way is open to each one of us. और वो उनका जो मार्ग है वो हम सभी के लिए अपने मार्गों को खोलेंगे। So it is up to you and me to choose it. और ये मेरे और आपके ऊपर है कि हमें इन बातों का चुनाव करना है। Jesus is welcoming us to come and have fellowship with Him. और यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं कि हम उनके साथ संगति कर सके, उनके साथ चल सके। So let us take the right decision and think about God and live for God. और इसलिए सही निर्णय ले, प्रभु के बारे में सोचो, प्रभु के लिए जिए। Amen. So we'll hear Brother Ratnaswamy and then Brother Raju can share after that. And then others can also share, Brother Ajit, and so we can take sisters also can share. So Brother Raj, Ritik can translate for Brother Ratnaswamy. You can put your video on, brother, if possible. Put your video on and share also. It'd be nice. Yeah. Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Hearing, brother? Yes, brother. Jesus told that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. और यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। So as we heard, we have to give more importance to read God's word. और इसलिए हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने में। How many days we can be without food? हम कितने दिन बिना खाए रह सकते हैं? So like that we have to feel if we do not read God's word daily. और इसलिए अगर हम परमेश्वर के वचन को रोज नहीं पढ़ेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। We have to be thirst and और hungry. हमारे अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए।
Psalmist says, "Your word is a lamp to my feet and path to my light to my path." और जो भजनकार है वो जो दाऊद है वो उन्होंने एक वचन लिखा है कि प्रभु आपका वचन जो है वो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए दीपक है, मेरे पाँव के लिए एक लैंप है। God's word only lead us to right path. और सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो हमें सही मार्ग की ओर ले जा सकता है। We can take right decision. और हम सही निर्णय ले सकते हैं। God's word is nothing but God has poured out His heart in the Bible. और परमेश्वर का वचन और कुछ नहीं, पर परमेश्वर ने अपने हृदय को पूरी तरीके से उंडेल दिया है उनके वचन के अंदर। Yes, God's word is from His innermost heart. और जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर के जो हृदय है वो उसको प्रभु ने पूरा लिखा है। If we meditate and obey, then it will lead to Jesus. और अगर हम उस वचन पर मनन करेंगे और उस वचन को मानेंगे तो हमें यीशु मसीह की ओर ले जाएगा। Then we can walk like Jesus walked. और फिर हम वैसे चल सकते हैं जैसा प्रभु यीशु चला। Talk like Jesus talked. और वैसे हम बात कर सकेंगे जैसे यीशु मसीह बात करते थे। Yes, my dear brothers and sisters, in coming years we resolve. We have to resolve that we have to read God's word daily and meditate it day and night. और इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले सालों में, जो आने वाला साल है, हमें इस बात का प्रण ले, निर्णय ले, इस बात का निश्चय करें कि हम परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ेंगे और रोज मनन करेंगे। Then God will help us and bless us. Amen. और फिर प्रभु हमारी मदद करेगा और हमें आशीषित करेगा। आमीन। राजू, ओके? यस, ओके। मैं भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मुझे बहुत सारे वचनों से जो बात किया है उसके द्वारा मैं प्रोत्साहन करना चाहूंगा। भजन संहिता 37 में 37 में 4-5, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। Delight yourself in the Lord and he will give you the desire of your heart. Commit your way to the Lord and trust in him, he will do it. तो ये वचन से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि मुझे अपने मार्ग की चिंता प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए और प्रभु परमेश्वर हमें आनंद के मार्ग में मुझे अगुवाई करेंगे और उन्हीं के मार्ग में बने रहना चाहिए। प्रभु के संगति में उनकी उपस्थिति का आनंद लेना चाहिए। और इन दिनों में बहुत प्रार्थना समय और प्रभु के साथ उपस्थिति में और उनके साथ चलने में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है क्योंकि प्रभु ने बोला है कि जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। नेहमिया में 8 में भी लिखा है कि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। तो उसमें उस सब बातों से मैं बहुत ही आनंदित रहता हूँ और प्रभु मुझे हर दिन वचन के द्वारा प्रोत्साहन देते हैं और सामर्थ देते हैं। और लेकिन प्रभु एक साथ ही साथ मुझे वार्निंग भी देते हैं और वो बता रहे कि दूसरा पत्रस 3 में, बट अकॉर्डिंग टू हिज 3 में 13, but according to his promise we are looking for new heavens and new earth in which righteousness dwells. Therefore, beloved, since you look for these things, be diligent to be found by him in peace, spotless and blameless. तो प्रभु इसमें भी मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे कि इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आशा देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। तो परमेश्वर प्रोत्साहन दे रहे थे कि अंत के दिन में ज्यादातर डिसेप्शन होगा, धोखा होगा, लोग अलग अलग बातों में मन लगाएंगे, अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और जिसे प्रभु ने बताया कि जैसे नूह के समय थे वैसे ही मेरा भी आना होगा। तो अपने आप को तुम निर्दोष, निष्कलंक और स्पॉटलेस रखना। तो प्रभु ने ये सब बातों से प्रोत्साहन दिया। हम देखते हैं कि जब मूसा ने इजराइल को से वहाँ इजिप्ट मिस्र देश से छुड़ाया था तो परमेश्वर के बहुत सारे अद्भुत कार्य और चमत्कार और सभी देखा था, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत सारे कुरकुराए, बहुत सारा बातों से परमेश्वर को क्रोधित दिलाया, लेकिन उनके विश्वास नहीं किया। इसलिए हिब्रू में भी प्रभु ने बताया कि यदि आज तुम उनकी आवाज को सुनो
तो कठोर ना करो, जैसा बहुत सारे लोगों ने किया था। तो हर दिन प्रभु कह रहे कि उनके वचन सुनने में तत्पर और बोलने में धीरज रखो और प्रभु में आनंद के साथ बढ़ते रहो। और वचन है जैसे बताता हूँ, पहला पतरस 2 में 24-25, and he himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sin and live to righteousness. For by his wounds you were healed, for you were continued straying like sheep, but now you have returned to the shepherd and guardian of your souls. तो प्रभु यहाँ पे प्रोत्साहन दे रहे थे कि वह आप ही हमारे पापों को हमारे देह पर ले लिया। मैं भी प्रभु के अनुग्रह से उनके राज्य में आया और मैं भी बहुत सारे पापों से लदा हुआ था, पूरा भरा हुआ था और संसार के बंधन से, अंधकार से जुड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु के लहू के द्वारा उनके मार खाने से मैं चंगा हुआ। उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिससे हम पापों के मर कर धार्मिकता के लिए जीवन जिए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो प्रभु यहाँ पे प्रोत्साहन दे रहे कि अब तुम पाप के लिए मर गए हो, अब धार्मिकता के लिए जियो। जैसे ब्रदर जैक भी कई बार बताते हैं कि द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट राइचियसनेस, पीस एंड जॉय, रोमन चैप्टर 14-17 में। तो वहाँ पे भी इस सब बातों से प्रभु मुझे हर दिन प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अपना मन जो है आत्मा के अनुसार चलो और तब तुम्हें शांति प्राप्त होगा। तो प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो बहुत विश्वास योग्य है और बहुत सारे बुरे कंपनियों से और संसार की बहुत सारे रीति रिवाज से और अलग अलग बातों से मैं जब चलता हूँ तो प्रभु का जो वचन है वो बहुत प्रोत्साहन देता है। और उन्होंने बोला भी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं और कभी नहीं त्यागूंगा, तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगा। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। हेलो, प्रेज लॉर्ड। बोला बोला हा, प्रेज लॉर्ड। प्रभूला स्तुती असो, प्रभूला धन्यवाद देतो। पावलाने सांगितले की माझं अनुकरण करा। आज पावलाच्या जीवनाकडे आपण बघत असताना पाऊल हा आध्यात्मिक दृष्टीनं अष्टपैलू होता। हा अष्टपैलू व्यक्ती आज तो तिमोथेला सांगत असताना तो तिमोथेला काय सांगत आहे, पाऊल जसा होता तसा तिमोथेने बनायला पाहिजे। आज आपलं प्रभूने तारण केलं, आज आपण इतके वर्ष प्रभूच्या मागे आहोत, पण आपला आज विश्वास काय आहे? आज पावलानं खटक रीतीने, खंबीर रीतीने त्या राजाला सांगितले की न्यायनिवाडाविषयी, इंद्रिय दमनाविषयी आणि भावी न्यायाविषयी सांगितले। ह्या गोष्टी सांगत असताना पाऊल का सांगत आहे, तर पाऊलाचा असा विश्वास होता की त्याला प्रभूनं पकडून ठेवले होते। तो प्रभूचा खरोखर एक शिष्य, बंदा शिष्य होता। म्हणून पहिले तिमोथी याचा पावलाचे दुसरे तिमोथी याचा 8-9 वचन काय सांगत आहे, म्हणून आपल्या प्रभूच्या साक्षीविषयी आणि त्याचा बंदीवान जो मी, त्या माझ्याविषयी तू लाजू नये, तर शुभवर्तमानासाठी देवाच्या सामर्थ्याप्रमाणे तू माझ्याबरोबर दुःखाचा वाटा घे। त्याने आम्हाला तारले व पवित्र बोलावले आहे, हे त्याने आमच्या कर्माप्रमाणे नव्हे तर आपल्या स्वतःचा हेतू याप्रमाणे केली। ही कृपा जगाच्या पूर्वी ख्रिस्त येशूमध्ये आम्हाला दिलेली होती। पाऊल तिमोथेला हे सांगत असताना काय सांगत आहे, तू सुवार्थेसाठी लाजू नको। आज आम्हाला खरोखर सुवार्थेची लाज वाटू नये। आम्ही बोलण्याकरता पवित्र आत्म्याचं आम्हाला सामर्थ्य पाहिजे। आज
दुसरीचं काय करतात की एखाद्या हिरो बद्दल बोलायचं म्हटल्यावर ते लाजत नाहीत. हिरोने असं केलं तसं केलं, हिरो मध्ये बोलतात. अरे पण ज्या देवानं आपल्याला तारण दिलं, ज्या देवानं आम्हाला पवित्र पाचरणे बोलवलेले आहे, त्या देवासाठी आम्ही लाजायचं काय? आम्ही कदापि लाजायचं नाही. पाऊल त्याला शिकवत आहे की हे आपल्या कर्माप्रमाणे नाही, तर त्याच्या पवित्रतेने आम्हाला बोलवलेले आहे. आणि त्याचं बोलवण्याने असताना आम्ही त्याला ख्रिस्ताला गाजवलंच पाहिजे. त्यानं जे वचन आपल्याला सांगितलं त्या वचनाप्रमाणे मी आचरण केलं पाहिजे, त्या वचनाप्रमाणे आम्ही जीवन जगलं पाहिजे आणि पवित्र आत्म्याद्वारे आम्ही चाललं पाहिजे. कारण या वेळेला गलती करार पत्र 2:16 काय सांगत आहे? गलती 2:16 गलती 2:16 Galatians 2:16. तरी माणूस नियमशास्त्रातील कर्माकडून न्यायी ठरत नाही, केवळ येशू ख्रिस्तावरील विश्वासाकडून न्यायी ठरतो. असे जाणून आपण देखील ख्रिस्त येशूवर विश्वास ठेवला, यासाठी की आपण नियमशास्त्रातील कर्माकडून नव्हे तर ख्रिस्तावरील विश्वास कडून न्यायी ठरावे. कारण मनुष्य जातीतील कोणीही नियमशास्त्रातील कर्माकडून न्यायी ठरत नाही. पाऊल हे ठामरसीने गलतीतल्या लोकांना काय सांगत आहे? तर आम्ही कर्माकडे आम्ही जायचं नाही, तर आमच्यासाठी प्रभू येशूवर आम्ही विश्वास ठेवत असताना त्यानं जे आमच्यासाठी रक्त सांडलं, त्या रक्ताद्वारे त्यानं आम्हाला विकत घेतलं, याची आम्हाला जाणीव ठेवून त्या जाणीवेने आम्ही प्रत्येकानं शुभवर्तमान सांगितलं पाहिजे. प्रभूला स्तुती असो. आमेन. आमेन. और कोई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है? थोड़ा कुछ आपके मन में जो कुछ भी है शेयरिंग करने के लिए? 2-3 मिनट है, कोई भी बोल सकते हैं, कोई भी. एनीबॉडी कैन शेयर. मैं एक वचन शेयर करना चाहता हूँ. रोमन्स 14 उसका वर्स 4. प्रभु ने ये वचन से मुझसे बात करा. हु आर यू टू जज द सर्वेंट ऑफ अनदर? टू हिज ओन मास्टर ही स्टैंड्स ऑफ ऑल, एंड ही विल स्टैंड, फॉर द लॉर्ड इज एबल टू मेक हिम स्टैंड. तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है. वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है. तो इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात कर रहे थे. मैं जब मत्ती भी किताब में हमने पढ़ा है कि जो सरमन ऑन द माउंट है, उसमें भी प्रभु यीशु ने बोला कि डू नॉट जज अदर्स. तो मतलब मुंह से तो मैं जब हमने सीखा कि हमें किसी को जज नहीं करना, तो हमने मुंह से तो सीख लिया कि अब मैं किसी और के बारे में बात नहीं करूंगा कि वो कैसा प्रभु के पीछे कैसे चल रहा है, या फिर वो यीशु मसीह के वचन को मानता है कि नहीं मानता. पर एक मैंने जो अपनी लाइफ के अंदर डिस्कवर किया कि मेरे मन में मैं बहुत बार ऐसा सोचता रहता हूँ कि ये तो वैसा कर रहा है, उसने तो वो किया, वो तो गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा. तो प्रभु ने ये वचन से मुझसे बात करी कि अगर मैं ऐसा दूसरों के बारे में सोचता रहूंगा मन ही मन, तो मेरा जो आत्मिक ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं तो अपना पूरा जो टाइम है उसी में वेस्ट हो जाएगा कि मैं दूसरों के बारे में. तो ये वचन से प्रभु ने इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा उदाहरण से प्रभु ने मुझसे बात करी कि अगर मेरे घर में कोई काम वाली आंटी आ रहे हैं और वो मेरे घर पे बर्तन मांजते हैं, और किसी और के घर में भी कोई आंटी आ रहे, मतलब कोई आंटी आ रहे हैं, वो उनके घर में बर्तन मांज, अगर वो उनके घर में जो दूसरे के घर में कोई आंटी बर्तन मांजते हैं और वो अच्छे से नहीं मांज रहे हैं, या फिर बर्तन में कुछ झूठा लग रहा है, तो हम कभी भी उनके घर जाके ऐसा तो इतना बोलते हैं कि अरे आंटी आप ढंग से काम करो, क्योंकि उसका जो मास्टर है, उनका तो वो घर का जो मालिक है वो उसे बोलेगा ना. तो वैसे ही प्रभु ने मुझे बताया कि जो दूसरे विश्वासी हैं वो प्रभु के सेवक है, वो हमारे सेवक नहीं है.
हमें उन्हें जज नहीं करना है, हमें अपने आप को जज करना है, क्योंकि दूसरों को जज करने के लिए प्रभु है। तो मुझे बहुत कन्विंस हुआ इस बात से कि हमारी जो आत्मिक ग्रोथ है बहुत अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि हम पूरा ध्यान हमारे खुद को जज करने के लिए लगाएंगे। तो प्रभु से मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि प्रभु मैं बाहर से तो कंट्रोल कर लूंगा, पर मन में मैं हमेशा जज करता रहता। तो प्रभु मुझे मन भी साफ करिए कि मैं ना सिर्फ अपने आप को जज करूँ, कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई कैसे भी जी रहा हो प्रभु आपके लिए, कोई गलती कर रहा है या फिर कोई गलत कर रहा है, वचन के अनुसार नहीं कर रहा है, तो वो उसका और आपके बीच का संबंध है। तो प्रभु ने इस तरीके से हमसे बात करी। प्रभु का धन्यवाद। तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रभु के वचन से हमको ज्यादा सोचना चाहिए, हमारा सोच तो प्रभु का वचन की तरफ, और थिंकिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द लाइंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। क्या प्रभु ऐसे इस सिचुएशन में क्या करेंगे, या प्रभु का वचन क्या कहते हैं, तो मन बिल्कुल फिर जाएंगे।